Hello friends, good morning. I am Mukund Adau, VGT Physics, JNV Nanded. Now friends, in today's class we are going to discuss the heating effect of electric current. Okay. Now आपको मालूम होगा कि हम हमारे घर में बहुत सारे हीटिंग अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक गीज़र है, पानी गर्म करने के लिए हम रॉड यूज़ करते हैं, इमर्शन रॉड, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है। ये सारे के सारे जो अप्लायंसेस है, तो ये सारे के सारे अप्लायंसेस हमको हीट देते हैं। अपने आप देते हैं क्या? नहीं, क्या करना पड़ता है कि उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना पड़ता है, बराबर है कि नहीं। जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमको हीट मिलती है, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट, बराबर है कि नहीं, ऑन द अकाउंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और ऑन द अकाउंट ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है कि नहीं। दैट मीन्स दिस मे बी, या वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ a heat due to electric current, production of heat due to electricity, and hence that is nothing but that is the heating effect of electric current. Okay, now there are two more important effects of electric current. Those are magnetic effect of electric current and chemical effect of electric current. ठीक है, तो जैसा कि magnetic effect of electric current that we have to study in next topic in detail. Now in today's class we will discuss about this heating effect of electric current in detail. Okay. Now the points to be discussed in today's class we will see. The first we have to discuss about heating effect of electric current. Second point we have to discuss about the applications of heating effect of electric current. And third we will see numerical example just to clear the concept. Okay. Now the first we are going to discuss about heating effect of electric current. Now we will see what is this effect. When an electric current is passed through a high resistance conductor, the heat is produced in it. This effect of production of heat called as heating effect of electric current. जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया क्या कि there is the production of heat on the account of electricity on the account of the electric current, बराबर है कि नहीं। That means अब हमको करंट कहाँ देना है? When an electric current is passed through a high resistance conductor, उस कंडक्टर में से करंट को पास करना है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर, देन हीट इज प्रोड्यूस इन इट. दिस इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, नाउ वी हैव टू सी द फार्मूला फॉर द हीट प्रोड्यूस. जैसा कि हमने कहा इफेक्ट के अनुसार उस कंडक्टर में, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है, बराबर है कि नहीं। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, कैसी होती है? दैट हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स दैट वी हैव टू सी. So particularly we have to see the formula for the heat produced now. Now for that here we will consider, suppose current I flows through a wire with resistance R for time t. We will consider there is conductor, a wire whose resistance is R. Now through that wire current I is flowing for a time t. बराबर है, therefore here it is considered that कि current I flows through a wire with a resistance R for time t. Okay. Now then what happened? The work done in moving the charge Q through a potential difference V is W equal to V into Q. W equal to V into Q. Now why we have to search for this work done? Because we know that what is electric current? Electric current is rate of flow of charge. Now we are sending electric current, मतलब we are sending charge through the conductor, बराबर कि नहीं। अब ये चार्ज कौन सेंड करता है? अपने आप हो जाता है? नहीं, we have to connect that conductor to the battery या सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसको कहते हैं, बराबर है कि नहीं। तो ये जो बैटरी को चार्ज को सेंड करना है, मतलब बैटरी चार्ज को सेंड करने के लिए जो वर्क करती है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक वर्क. ठीक है। अगेन ये जो फॉर्मूला कहाँ से आए, तो यदि आपको रिकॉल करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. इसके पहले हमने देखा है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है कि नहीं। V इज पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फार्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्योंकि W अपॉन क्यू इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देयरफॉर W इज इक्वल टू V इनटू Q. देयरफॉर W को क्या कहते हैं? W इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक वर्क, बराबर कि नहीं। और ये वर्क किसको करना पड़ेगा? बैटरी को। और इसीलिए यहाँ पे कहा है कि द वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज W इक्वल टू V इनटू Q. ओके, नाउ W इक्वल टू V इनटू IT. So here this Q is replaced by IT. Why IT? That you know.
Here I equal to Q by T. This is the definition of a current, rate of flow of electric charge. Therefore Q equal to IT. Therefore this Q is replaced by IT. Again it can be written as W is equal to IR into IT. Again instead of E, the IR term is written. What is this IR term? That is from now Ohm's law. Therefore IR into IT. Therefore finally क्या बना? Here V equal to IR. Therefore it becomes now I square RT. This I into I square RT. ठीक है. Now this is the amount of work done in moving a charge Q through a potential difference V. This work is done by the battery. Okay. Now that work comes out to be I square RT. Now here we will assume that, see, assuming that all electric work done is converted into heat energy. यदि हमने यहाँ पे assume किया कि जो कुछ भी यहाँ पे वर्क डन हुआ जो बैटरी ने किया इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करने के लिए, हम कंसिडर करेंगे कि देयर इज नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है. मतलब जो भी वर्क डन वो बैटरी करती है पूरा का पूरा यदि हीट एनर्जी में यदि कन्वर्ट होता है तो डायरेक्टली वी कैन राइट द फार्मूला फॉर द हीट प्रोड्यूस. देन द हीट प्रोड्यूस इज गिवन बाय द फार्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो ये I स्क्वायर RT क्या है? एक्चुअली क्या था हमारा? ये वर्क डन था. अभी हमने क्या एज्यूम किया कि यदि कोई लॉस नहीं है तो सारा का सारा वर्क डन वो हीट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देयरफॉर अब हीट के लिए हमारे पास फार्मूला मिलेगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT. ठीक है. देयरफॉर व्हाट एवर द हीट इज प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ऑन द अकाउंट ऑफ heating effect of electric current is calculated by this important formula. Always remember this formula, H equal to I square RT. Okay. The SI unit of heat is joule, क्योंकि here heat produce होती है. Again it is a type of energy है कि नहीं? और हमको मालूम what is the SI unit of any energy? Energy is measured in joule and therefore heat is also measured in joule. Okay. Now there is one more term that is called as the Joule's law of heating. Actually this heating effect is studied in detail by the Joule है कि नहीं? Now he explained the concept of this heating effect of electric current. Now what is the Joule's law? We will see. According to Joule's law of heating, according to Joule, heat H produced in a conductor is directly proportional to, Joule के law के statement के अनुसार जो कुछ भी हीट प्रोड्यूस होती है दैट हीट इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट. नंबर वन, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? द नंबर वन इज दैट द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट I स्क्वायर. बराबर नहीं? मैथमेटिकली वी कैन राइट H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दैट द हीट इज प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कैपिटल R. H is proportional to R. And third is that heat is directly proportional to time t for which the current is passed through the conductor, that is H is proportional to t. है कि नहीं? तो in short whatever the heat is produced, so according to the Joule's law of heating, it is observed that the heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the current. Next, directly proportional to the resistance of the conductor या wire, and the directly proportional to the time for which current is sent in a conductor. Current is flowing in a conductor. Therefore, if I combine all the three statements, then H is proportional to I square RT. I square के साथ है, R के साथ है, T के साथ है, मतलब combiningly H is proportional to I square RT. Therefore, if I remove this sign of proportionality, we have to put this equality. Therefore, H equal to K into I square RT. Now, in SI, the value of constant K is 1. What is the meaning of this thing? That means, if we measure all the quantity in SI unit, जैसा कि H is measured in joule, current I is measured in ampere, R is measured in ohm, and T is measured in second, then the value of K comes out to be 1. And therefore, it is said that in SI, the value of constant K is 1, and therefore now we can write the formula H equal to I square RT. In short, this is nothing but this is called as the Joule's equation of heating effect of electric current. ठीक है? Now this equation itself is called as the Joule's law या Joule's equation. तो already we have obtained that relation. बराबर है कि नहीं? But here also we have defined this, what is the Joule's law. So according to Joule's law, the same equation can be obtained, that is the heat produced in a conductor is
given by this formula H equal to I square RT. Okay, so this is all about the heating effect of electric current. Now to clear the concept, now here we will study one example here. Example is there, a potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron. Calculate number 1 current and number 2 heat produced in joules in 10 seconds. Now this is the example. ठीक है. Now a potential difference of 250 volt is applied across a resistance 500 ohm है ना, in an electric iron. मतलब अब हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो हियर वन बाय वन वी विल सॉल्व इट. फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, बराबर कि नहीं, या दैट रेजिस्टेंस. फॉर दैट व्हाट इज द गिवन क्वांटिटी? द गिवन क्वांटिटी इज देयर, द पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज गिवन, इट इज 250 वोल्ट. ओके, रेजिस्टेंस इज गिवन, इट इज 500 ओहम. I इक्वल टू व्हाट, करंट हमको पूछा है. क्या फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा? और यूजुअल ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर. But here we have to calculate I, therefore I is equal to V upon R. Put the value, V कितना हो गया 250 डिवाइडेड बाय R कितना 500, ये 2 का भाग जाएगा, इसलिए it becomes now 1/2. 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर. therefore हमारा आंसर क्या रहेगा 10. करंट I इक्वल टू 0.5 एम्पियर. therefore पहले का आंसर हो गया. हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस या coil of electric iron? 0.5 ampere. Okay, now second we have to calculate the heat produced in joules for a 10 second, in 10 second. ठीक है. For that here the quantity is now I equal to 0.5 ampere. Just we have calculated it. R equal to 500 ohm. T equal to 10 second हमको दिया है, and H equal to पूछा है हमको, बराबर कि नहीं. Now here which formula we have to use? We have to calculate the heat, and therefore the formula और कैलकुलेशन ऑफ हीट इज H इक्वल टू I स्क्वायर RT, हमेशा की तरह. ओके, नाउ H इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ I 0.5 होल स्क्वायर, R 500 into 10. जस्ट मेक ए कैलकुलेशन. 5.5 into 0.5 0.25 into 500 into 10 5000 हो गए. और इसका यदि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी नाउ 1250 joule, and therefore now 1250 joule, this will be the value of H, and therefore the answer will be the heat produced H equal to 1250 joule. Okay, so just we have studied this example to check the formula. Just we have learned here H equal to I square RT. Already this formula we know, that is the Ohm's law, V equal to R. Okay, so just this type of example, combined example, like in which many concepts are there, appears in the examination. Therefore you have to go for such a type of examples. Okay, now the second point we have to discuss, that is applications of heating effect of electric current. कहाँ का ये heating effect of electric current use होता है, that we have to see now. Now the very first application is there. The heating effect of electric current is utilized in working of electrical appliances such as electric iron, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ओवन, वाटर हीटर एक्सेट्रा. तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग अप्लायंसेस है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ये सारे के सारे किस पर डिपेंड होता है? दैट इज नथिंग बट दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है कि नहीं? तो जैसा कि इलेक्ट्रिक आयरन हमको सबको पता ही है, जैसा ही हमें प्लग लगा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के बाद अपने आप गर्म हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ हीट हो जाता है. ठीक है, एक्चुअली कैसा होता है, क्योंकि ये जितने भी डिवाइसेस है उसमें एक हीटिंग एलिमेंट या कॉइल होती है, चाहे वो टोस्टर हो, गीजर हो, केटल हो, या इलेक्ट्रिक आयरन हो या ओवन हो, इसके अंदर एक कॉइल होती है, बराबर है कि नहीं? और वो कॉइल स्पेशल कॉइल होती है, स्पेशल टाइप ऑफ ए कंडक्टर है. उसकी स्पेशलिटी क्या होती है? हाई रेजिस्टिविटी, और दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट, है कि नहीं? तो जो कुछ भी हीटिंग एलिमेंट जिसको हम कॉइल भी कहते हैं, तो इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. व्हाई हाई रेजिस्टिविटी? क्योंकि हमको मालूम है वी रिक्वायर हीट एंड हीट इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू फार्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो उसमें जो I होता है दैट इज द करंट, जो हमको बाहर से आता है, हम उसको ज़्यादा कम नहीं बढ़ा सकते. T हमारे हाथ में है, जितना ज़्यादा समय तक हम टाइम बढ़ाएंगे तो उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. लेकिन हमको कम समय में यदि बहुत ज़्यादा हीट चाहिए तो हमारे हाथ में ये है कि इस प्रकार का मटेरियल कंडक्टर हमको यूज़ करना है जिसका रेजिस्टेंस हाई चाहिए, बराबर है कि नहीं?
और हाई रेजिस्टेंस होने के लिए उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और इसलिए जो कुछ भी हीटिंग एलिमेंट कॉइल यूटिलाइज करते हैं तो इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, और दूसरा पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, दिस इज द स्पेशलिटी। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज the heating effect of electric current is utilized in working of electric bulb, in working of electric bulb। आजकल ये बल्ब बहुत कम यूटिलाइज होते हैं, पुराने ज़माने में ये बल्ब यूज़ होते थे, बराबर है कि आजकल भी है लेकिन इसका यूज़ बहुत कम है। ये जो बल्ब होता है इसमें एक फिलामेंट होती है, इसे फिलामेंट कहते हैं, और वो टंगस्टन की फिलामेंट होती है, ठीक है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो आपको पता होगा एक ग्लो हो जाती है रेड, और हमको लाइट में से लाइट मिल जाता है, बराबर कि नहीं। तो एक्चुअली हाउ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज, तो जो कुछ भी एलिमेंट जिसको फिलामेंट कहते हैं दैट इज द टंगस्टन फिलामेंट। तो देखो उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, अगेन जो कुछ भी मटेरियल यूज किया जाता है इस फिलामेंट में, इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि हमको वेरी हाई हीट चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला I²RT, और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर के बावजूद भी वो टूटना नहीं चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो इसी प्रकार का जो मटेरियल टंगस्टन ये इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, बराबर कि नहीं। एक्चुअली we are getting a light from electric bulb, बराबर कि नहीं। एक्चुअली when we supply the electric energy there is a conversion of electrical energy to heat energy, and then heat energy get converted into electrical energy, ठीक है। इसमें गैस वगैरह होता है, वो गैस आयनाइज होता है, उसमें एटम्स जो होते हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में जाते हैं, एक्साइटेड एटम होते हैं, उसके बाद में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। जब भी वो ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं तो वहां से लाइट एनर्जी निकलती है, बराबर कि। तो ये डिटेल में उसका कन्वर्शन है, मतलब इन शॉर्ट में यदि हमको ध्यान में रखना है तो हाउ we have to remember कि we are supplying which energy, we are supplying the electrical energy, then this electrical energy get converted into heat energy according to this effect, heating effect, and then that heat energy get converted into light. In this way we can get light from the electric, है कि नहीं। that means the totally the working of this electric bulb is based on this heating effect of electric current। okay, and now the third important effect we have to see, what is that, the heating effect of electric current is utilized in working of electric fuse, it is utilized in the working of electric fuse। अभी इलेक्ट्रिक फ्यूज नाम हमने सुना है, हमारे घरों में हम यूज करते फ्यूज, किस लिए यूज करते हैं आपको पता है कि नहीं। जब कभी भी सडनली हाई करंट आ जाता है हमारे घर में, बराबर है, तो यदि हमारे यहाँ स्विच लगाए नहीं हमने यदि वायरिंग में, तो क्या हो जाएगा, वो हाई करंट हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें से जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, जल जाएंगे, डैमेज हो जाएगा उनका, बराबर है कि नहीं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए यहाँ पे एज ए सेफ्टी मेजर जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फ्यूज, है कि नहीं। तो उसका जो फंक्शन है, उसका जो वर्किंग है, दैट वर्किंग इज बेस्ड ऑन दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखिए दो प्रकार के फ्यूज, ये पहले पुराने ज़माने में इस प्रकार के फ्यूज यूज किए जाते थे, है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे एक ये चाइना क्ले की एक ग्रिप होती है, बराबर है कि नहीं, और यहाँ ये जो है ना इसमें एक वायर लगा होता है, या फिर आजकल इस प्रकार के फ्यूज यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, दिस इज द वायर, दिस इज नथिंग बट दिस फ्यूज वायर। ये जो फ्यूज वायर होता है दिस इज मेड ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ ए मटेरियल, स्पेशल टाइप ऑफ ए अलॉय। उसको उसी प्रकार हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका अलग अलग रेटिंग होता है। हमारे यहाँ हम टू हिच करंट वी हैव टू डील, किस प्रकार का करंट हमको चाहिए, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 3 एम्पियर अकॉर्डिंगली। तो इस प्रकार से ये अलॉय को प्रिपेयर करते हैं और उसका ये फ्यूज वायर बनाए थे, बराबर है कि नहीं। तो ये जो वायर होता है, ये वायर जो होता है उसकी स्पेशलिटी होती है व्हाट, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हम हमारे घर में कॉपर के वायर यूज करें और बीच में हम फ्यूज डाल रहे हैं, तो जो भी फ्यूज डालेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कॉपर जो है उससे कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्या हो जाएगा, यदि सडनली करंट आता है तो सबसे ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस किस में हो जाएगी, हमारे ओरिजिनल इनिशियल वायरिंग में नहीं, उस फ्यूज वायर में हो जाएंगी, और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट ये कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। तो यदि हीट प्रोड्यूस हो जाएंगे और उसका मेल्टिंग पॉइंट यदि लो है तो जल्दी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है, और सर्किट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, बराबर है कि नहीं। और इसीलिए हियर दिस वी हैव टू रिमेंबर व्हाट इज दैट, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ए फ्यूज वायर। द स्पेशलिटी ऑफ फ्यूज वायर इज इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड it should have low melting point। okay, again the heat is produced by the same formula, H equal to I²RT। okay।